how are you all? I'm sure you all are fine and taking good care of yourself. So children, let's begin with our next chapter, which is Introduction to MS Excel 2016. Let's get started. Look at the table given below and answer the following. The number of cells that have multiple of 5, the column name that has the maximum number of squares, the row number that has the maximum number of circles, the number of cells that have shapes other than square or circle, the sum of the value under column B, the sum of the value in row 2, the column name whose sum of values is the minimum, the column and row number of the cell with the green square, the column name with the most different number of shapes, the row number with the most different number of shapes. You have seen the use of tables in MS Word. However, you cannot do calculations easily with the values stored in a Word table. Calculation can be easily done using a special type of paper layout called spreadsheet, and MS Excel is an electronic version of a spreadsheet. In this chapter, we will learn about MS Excel. तो बच्चों यहाँ पे आपको एक टेबल दी गई है, उस टेबल के बेसिस पे आपको ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन्हें आपको फिल करना है, ठीक है। और आपने देखा होगा MS वर्ड में हम कैसे टेबल्स बनाते हैं, लेकिन टेबल्स में हम अपने डाटा तो फीड करते हैं, साथ ही साथ हम उसमें कैलकुलेशन नहीं कर सकते। कैलकुलेशन करने के लिए हमें दूसरी स्प्रेडशीट या एक MS Excel वर्ड की शीट बनानी पड़ती है जिसमें हम कैलकुलेशंस वगैरह को करते हैं। अब ये कैसे करते हैं ये हम इस चैप्टर में जानेंगे। About MS Excel. MS Excel is an application software that helps us to store and analyze data. It is also known as an electronic spreadsheet. A spreadsheet can be defined as text and numbers that have been organized in rows and columns. You can create charts and graphs from the data and convey more meaningful information through them. MS Excel is of great importance to those who maintain accounts for sales, bills, or do mathematical calculations. Since it is used to create electronic spreadsheets for the data, MS Excel has features and applications for calculation and graphing tools and tables for presenting text and numeric data. तो बच्चों हम जान लेते हैं MS Excel क्या होता है। MS Excel जो है एक ऐसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपने डेटास को ना सिर्फ स्टोर करते हो बल्कि उन्हें क्या करते हो, एनालाइज भी करते हो। इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। स्प्रेडशीट जो होती है उसमें डिफाइन किया जाता है इस तरह से कि उसमें जो टेक्स्ट और नंबर्स होते हैं वो आप साथ में ऑर्गेनाइज करते हो, किसमें, रोज एंड कॉलम्स में। इसके साथ साथ आप इनके बेसिस पे चार्ट्स एंड ग्राफ्स भी क्रिएट कर सकते हो। MS Excel जो है ये काफ़ी कंपनीज़ में उनके अकाउंट डिटेल्स को हैंडल करने के लिए, स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी होती हैं। स्टार्टिंग MS Excel, द स्टेप्स टू क्रिएट Excel 2016 आर: स्टेप 1, click on the start button. Step 2, scroll to find Excel or search Excel and click on it. The Excel 2016 window appears. Step 3, click on a blank workbook. A blank Excel workbook opens. तो बच्चों MS Excel कैसे स्टार्ट करते हैं ये जान लेते हैं। सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे, उसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे एक्सेल को फाइंड करने के लिए, ठीक है। या फिर आप एक्सेल भी सर्च कर सकते हैं, एक्सेल टाइप करके भी आप सर्च कर सकते हैं। फिर आपके सामने Excel 2016 की जो विंडो है वो अपीयर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे अगर आपको न्यू प्रेजेंटेशन या न्यू स्प्रेडशीट जो है वो बनानी है, ठीक है। फिर आपके सामने ब्लैंक एक्सेल वर्कशीट जो है वो ओपन हो जाएगी। Inspiration. The first electronic spreadsheet named VisiCalc was created by Dan Bricklin and Bob Frank Stone. तो बच्चों बताया गया है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो थी वो क्रिएट की गई थी बाय डैन ब्रिकलिन एंड बॉब फ्रैंक स्टोन। Now workbook and worksheet. The Excel window that appears on the screen is called a workbook. It is assigned a temporary name as book 1. A file in MS Excel is known as a workbook. It has a .xlsx extension. A worksheet is a spreadsheet with rows and columns where you can type and store data and perform various operations on the data. A worksheet consists of 10,48,576 rows and 16,384 columns.
Columns are represented by letters on the top and rows by numbers on the left side of the worksheet. तो बच्चों हम जान लेते हैं वर्कबुक एंड वर्कशीट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। एक्सेल विंडो जो होती है, जो आपकी स्क्रीन में अपीयर होती है, उसे हम वर्कबुक कहते हैं, ठीक है। और इसमें आपको टेम्परेरी नाम दिया जाता है बुक 1 के नाम से, ठीक है। जब तक आप उसका नाम चेंज नहीं करते तो वो बाय डिफ़ॉल्ट बुक 1 ही रहती है। एक फाइल जो होती है एमएस एक्सेल में, उसे हम वर्कबुक के नाम से जानते हैं और ये एक्सटेंशन के साथ आती है। वर्कशीट जो होती है वो आपकी स्प्रेडशीट होती है, जिसमें रोज़ एंड कॉलम्स जो होते हैं वो ऐड किए जाते हैं ताकि आप अपने डेटा को उसमें एडिट कर सको और टाइप कर सको या स्टोर कर सको। अब वर्कशीट में आपके काफ़ी सारे रोज़ होते हैं एंड काफ़ी सारे कॉलम्स होते हैं। कॉलम जो होते हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं अल्फ़ाबेट्स के द्वारा, और जो आपके रोज़ होते हैं वो नंबर्स के द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं किसी भी वर्कशीट की स्लाइड में। नाउ द MS Excel इंटरफेस। The MS Excel interface is shown on next page. Quick access toolbar, title bar, window control button, name box, active cell, row, sheet tab, ribbon, formula bar, cell, worksheet, scroll bar, view button, zoom control, column. Think box. Find out the names of at least 5 spreadsheet software other than MS Excel. अब बच्चों ये आपको सोचना है कि अदर स्प्रेडशीट्स के नाम बताने हैं जो कि अलग होते हैं MS Excel सॉफ्टवेयर से। Let us learn about it in detail. अब ऊपर आपने सारे के सारे जो इंटरफेस होता है MS Excel का, उसके बारे में क्या क्या वहाँ पे बटन्स होते हैं वो आपने जान लिया, क्या क्या टूल्स होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में अब पढ़ेंगे। सबसे पहला है नेम बॉक्स। दिस डिस्प्लेज द सेल रेफरेंस एड्रेस ऑफ एन एक्टिव सेल, फॉर एग्जाम्पल A1, H8 etc., where A is column name and 1 is row number. Formula bar. This is located next to the name box. It displays the contents of the active cell. You can also type or edit data and formulas in the formula bar. When you type data in the formula bar, 2 buttons called cancel and enter appear on it. By using cancel button, you can avoid the task, and by using enter button, you can perform the task. The worksheet area. A large white space displaying a grid called the worksheet area. Entries in Excel are made in the worksheet within each cell in the grid. Sheet tab. When a new workbook is opened, Excel opens a single worksheet named Sheet 1. You can add more sheets to the same workbook by clicking on the New Sheet button. Switching among worksheets is done by clicking on the Sheet tab. तो बच्चों सबसे पहला इसमें आता है नेम बॉक्स। ये आपके सेल के रेफरेंस को डिस्प्ले करता है, ठीक है, उसके एड्रेस को ये डिस्प्ले करता है ऑफ एन एक्टिव सेल। जैसे कि A1 होता है, H8 होता है, तो A क्या है आपका कॉलम नंबर है और 1 क्या है आपका रो नंबर है। इसके बाद आता है फॉर्मूला बार। ये आपके नेम बॉक्स के नेक्स्ट होता है और यहाँ पे फॉर्मूलाज जो होते हैं वो डिस्प्ले होते हैं जो भी आप किसी एक्टिव सेल में अप्लाई करते हो। इसके साथ आपके 2 बटन्स आते हैं जो कि कैंसिल एंड एंटर के साथ अपीयर होते हैं, ठीक है। अगर आप कैंसिल बटन को यूज़ करते हो तो आप आपके टास्क को क्या कर देते हो, अवॉइड कर देते हो, उसे हटा देते हो। अगर आप एंटर बटन को यूज़ करते हो तो आप टास्क को वहाँ पे क्या करते हो, परफॉर्म करते हो। इसके बाद आपका वर्कशीट एरिया आ जाता है, जो भी आपके टेबल्स होती हैं, रोज एंड कॉलम्स होते हैं जिनमें आपको काम करना होता है, वो आपका वर्कशीट एरिया कहलाता है। शीट टैब जो होती है ये आपकी शीट्स को दर्शाता है, ठीक है। जो आपकी पहली शीट होती है वो शीट 1 कहलाती है। अगर आप शीट्स को ऐड करना चाहते हो 2, 3, 4 जितने भी आप शीट्स में ऐड करना चाहते हो तो वो आप ऐड इसमें कर सकते हो। रो, these are the horizontal divisions of a worksheet. These are normally marked with the numbers 1, 2, 3 etc. An Excel worksheet consists of 10,48,576 rows in all. Column. These are the vertical division of a worksheet. These are normally marked with the letters A, B, C etc. Columns after Z are named as AA, AB, AC etc. up to XFD. An Excel worksheet consists of 16,384 columns in all. Cell. In a worksheet, intersection of a row and column is called a cell. Each cell is identified by its column letter and row number, which is known as cell address. It is the smallest unit in a worksheet and can hold numbers, text or formula.
Active cell. As the name suggests, it is the cell that is currently active or selected. It can be recognized by its green outline. Data can be entered only in the active cell. Range of cells. A group of adjacent cells is called a range of cells. A range of cells is rectangular in shape. The smallest range is the single cell and the largest range is an entire worksheet. You can specify a range by writing the starting cell address followed by the ending cell address, both separated by a colon. For example, C1 colon C10 indicates a range starting from the C1 cell address and ending in the C10 cell address. तो बच्चों आगे और टूल्स के बारे में हम जान लेते हैं. इसमें आते हैं रोज़. रोज़ जो होते हैं ये आपके हॉरिजॉन्टल डिवीजन होते हैं और ये नॉर्मली नंबर्स के थ्रू ही दर्शाए जाते हैं. इसके बाद आते हैं कॉलम्स. कॉलम्स आपके वर्टिकल डिवीजन होते हैं, ठीक है, और इन्हें आप नॉर्मली लेटर्स के थ्रू मार्क करते हो. इसके बाद आते हैं सेल, जो आपका रोज एंड कॉलम्स के थ्रू इंटरसेक्शन करके एक जो छोटा सा सेल बनता है, एक छोटा सा बॉक्स बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है. और जो आपके कॉलम लेटर्स होते हैं, रो नंबर्स होते हैं, ये आपके सेल एड्रेस के नाम से जाने जाते हैं. जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो आपकी वर्कशीट कहलाती है, ठीक है, और जिसमें आपके होल्ड मतलब आप नंबर्स और टेक्स्ट जो होते हैं वो आप सेल के अंदर होल्ड करके रखते हैं. एक्टिव सेल. एक्टिव सेल जो होता है, जो आप नेम सजेस्ट करते हो, ठीक है, उसको आप एक्टिव सेल में जो आपका सेलेक्टेड सेल होता है उसको आप किसी नाम देते हो एक्टिव सेल का, जिसमें आपको काम करना होता है, ठीक है, और ये रिकग्नाइज किया जाता है बाय इट्स ग्रीन आउटलाइन, ठीक है. आपका जो काम जिस भी सेल पे आप काम कर रहे होते हो उसकी आउटलाइन ऑलरेडी क्या हो जाती है, ग्रीन हो जाती है. इसका मतलब होता है कि वो आपका एक्टिव सेल है जिसके अंदर आपको डेटा जो है वो फीड करना है. रेंज ऑफ सेल्स जो होती है, जो आपके काफ़ी सेल्स सेलेक्टेड होते हैं एक साथ, वो आपके रेंज ऑफ सेल्स कहलाते हैं, ठीक है, जिसमें आपके काफ़ी सारे सेल्स जो होते हैं एक साथ आते हैं और वो एक रेक्टेंगुलर शेप बनाते हैं. नाउ मूविंग अराउंड द स्प्रेडशीट. To input data in a worksheet, we have to move the cell pointer from one cell to another with the help of various keys defined in the table given below. Key function. Enter key moves the active cell down one row. Shift plus enter key moves the active cell one row up. Shift plus tab key moves the active cell one column to the left. Tab key moves the active cell column to the right. Left arrow key moves the active cell one column to the left. Right arrow key moves the active cell one column to the right. Up arrow key moves the active cell one row up. Down arrow key moves the active cell one row down. Control plus home key moves the active cell to the first cell, i.e. A1. Control plus and key moves the active cell to the last used cell on the worksheet. तो बच्चों आपको यहाँ पे बताया गया है कि कैसे आप अपनी जो स्प्रेडशीट है उसमें अपने कीबोर्ड के थ्रू भी मूव कर सकते हो इन कीज़ को आप एंटर करके. क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक. To create a new workbook when the Excel application is already running, follow the given steps. Step 1. Click on File tab. A backstage view appears. Step 2. Click on New in the left pan. A new pan appears on the backstage view. Step 3. Click on Blank Workbook. तो बच्चों हम जान लेते हैं कैसे हम वर्कबुक को, न्यू वर्कबुक को क्रिएट करते हैं, ठीक है. इसके लिए आपको क्लिक करना है फाइल टैब पे. आपके सामने बैक स्टेज व्यू जो है वो अपीयर हो जाएगा. इसके बाद आपको न्यू पे क्लिक करना है इन द लेफ्ट पैन, मतलब लेफ्ट में साइड में आपको जो भी आपको ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे उसमें से आपको न्यू पे क्या करना है, क्लिक करना है. आपके सामने न्यू पैन जो है वो अपीयर हो जाएगी ऑन द बैक स्टेज व्यू. फिर आपको क्लिक करना है ब्लैंक वर्कबुक पे. टेक टिप. यूज़ कंट्रोल प्लस एन टू ओपन अ न्यू वर्कबुक, ठीक है. न्यू वर्कबुक को ओपन करने के लिए आप अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल प्लस एन भी टाइप कर सकते हैं. एंटरिंग डेटा. टू एंटर डेटा इन अ वर्कबुक फॉलो द गिवन स्टेप्स. Step 1. Click on the cell where you want to enter the data. Step 2. Start typing your text or numbers. Step 3. Press enter key. The text or numbers appear in the cell. When you type in Excel, you will see that two buttons become active in the box to the left of the formula bar. These buttons are: the enter button is used to insert the text. The cancel button is used to cancel the typing task.
दिस इज इंसर्शन फंक्शन बटन। तो बच्चों हम जान लेते हैं हम कैसे डेटा को एंटर करते हैं अपनी वर्कशीट में। सबसे पहले आपको उस सेल को क्या करना पड़ेगा, क्लिक करने का पड़ेगा जहाँ पे आप अपने डेटा को एंटर करना चाहते हैं। उसके बाद आप अपने टेक्स्ट एंड नंबर्स को क्या करेंगे, टाइप करेंगे। उसके बाद आप एंटर की को प्रेस करेंगे, ठीक है। जो टेक्स्ट एंड नंबर है वो आपके सेल पे अपीयर होने लगेगा। जब आप टाइप करते हैं एक्सेल पे तो आप देखते हैं आपको 2 बटन जो है नज़र आते हैं जो कि एक्टिव होते हैं इन द बॉक्स ऑफ लेफ्ट ऑफ द फॉर्मूला बार। ये आपके एंटर बटन होते हैं जो कि आप टेक्स्ट को एंटर करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। और दूसरा होता है आपका कैंसिल बटन जो कि आप अपनी टाइपिंग टास्क को कैंसिल करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और इस तरह से आपका इंसर्ट फंक्शन बटन होता है जो ऐसे दिखता है। नाउ एक्टिविटी, open MS Excel 2016 and enter the following information in the worksheet। अब बच्चों आपको अपनी वर्कशीट जो है वो क्रिएट करनी है और फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन को उसमें क्या करना है, टाइप करना है। Types of data. In Excel, different types of data can be entered such as numbers. Numbers are values that consist of numerals from 0 to 9 and characters like plus, minus, 1, @ s, percentage, asterisk and etc. They can be used in calculations. In addition to actual numbers, Excel also stores date and time as numbers. By default, numbers are right aligned in a cell. Text. Text data has letters, numbers, spaces and special characters. It is not used in calculations. By default, the text data is left aligned in a cell. Most often, text entries are used for worksheet headings, names, and identify columns of data. Formulas. Formulas are mathematical equations involving number, values, operators, and cell addresses used for performing calculations on a worksheet. They can range from basic mathematical operations to complex calculations. Formulas begin with an equal to sign. तो बच्चों हम जान लेते हैं कि कैसे कैसे जो डेटा होता है वो हम टाइप करते हैं, ठीक है। सबसे पहले नंबर्स आते हैं। नंबर्स आप जो वैल्यू होती है, न्यूमेरिक वैल्यू 0 से लेकर 9 तक, वो आप अपने डेटा, अपनी जो वर्कशीट होती है वहाँ पे आप टाइप करते हो। इन्हें हम कैलकुलेशंस के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट में आपके लेटर्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं, स्पेसेस भी होते हैं एंड इवन आपके स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं, लेकिन इन्हें आप कैलकुलेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट डेटा होता है वो आपके सेल में लेफ्ट की तरफ अलाइन होता है। मोस्टली हम इन्हें यूज़ करते हैं हेडिंग्स को डालने के लिए, किसी पर्सन का या स्टूडेंट का नाम लिखने के लिए, या फिर हम अपने कॉलम्स का जो डेटा होता है उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए टेक्स्ट को यूज़ करते हैं। इसके बाद आते हैं फार्मूलाज। फार्मूलाज जो होते हैं वो आपके मैथमेटिकल इक्वेशंस होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं नंबर वैल्यूज़ के साथ, ठीक है। और आपके ये सेल को भी क्या करते हैं, साथ के साथ एड्रेस करते हैं जिसमें आप अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर रहे होते हो। और जो आपका फॉर्मूला होता है वो हमेशा इक्वल टू साइन के साथ ही बिगिन होता है। वर्किंग विद वर्कशीट. You can insert, rename and remove the worksheets in a workbook. Let's learn how. Inserting a new worksheet. In Excel, by default, a workbook appears with a single worksheet. According to your requirement, you can add more worksheets in a workbook. To insert a new worksheet, follow the given steps. Step 1. Right-click on the Sheet tab. A pop-up menu appears. Step 2. Select the Insert option. An instant dialog box will appear with worksheet option selected. Step 3. Click OK button or click on the new sheet button present next to the sheet tab. अब बच्चों हम जान लेते हैं कैसे हम न्यू वर्कशीट में डेटा जो है वो इंसर्ट करते हैं। एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी वर्कबुक होती है वो अपीयर होती है विद सिंगल वर्कशीट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट हम क्या करते हैं, उसमें शीट्स को ऐड करते जाते हैं। इसमें आपको क्या करना है, सिंपली जो शीट टैब है उस पर आपको राइट क्लिक करना है, ठीक है। आपके सामने एक पॉपअप मेन्यू जो है वो अपीयर हो जाएगा। उसके बाद आपको इंसर्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। आपके सामने फिर से एक इंसर्ट डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा विद वर्कशीट ऑप्शन सेलेक्टेड। उसके बाद आपको ओके बटन पे क्लिक करना है, या फिर आप सिंपली क्लिक कर सकते हैं न्यू शीट बटन पे, ठीक है। मतलब एक प्लस का छोटा सा साइन आ रहा होगा उस पर आप क्लिक कर सकते हैं और आप नेक्स्ट शीट को प्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ रीनेमिंग अ वर्कशीट.
To rename a worksheet, follow the given steps. Step 1. Right click on the sheet tab you want to rename. A pop-up menu will open. Step 2. Select the rename option. Write a new name for the sheet and press enter. अगर आपको अपनी वर्कशीट का नाम जो है वो चेंज करना है तो आपको सिंपली शीट टैब पर राइट क्लिक करना है, जिसका भी नाम आप चेंज करना चाहते हैं। आपके सामने पॉपअप मेन्यू जो है वो अपीयर हो जाएगा। उसमें बहुत सारे ऑप्शन आ रहे होंगे, आपको उसमें रीनेम ऑप्शन को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे नाम पूछा जाएगा कि कौन सा नाम आप चेंज करके दूसरा नाम रखना चाहते हैं। आप नाम टाइप करेंगे, उसके बाद आप प्रेस करेंगे एंटर को। Deleting a worksheet. To delete a worksheet, follow these steps. Step 1. Right click on the sheet tab. A pop-up menu appears. Step 2. Select delete option. A dialog box will appear. Step 3. Select delete sheet. अगर आप अपनी वर्कशीट को डिलीट करना चाहते हैं तो आप सिंपली राइट क्लिक करेंगे शीट टैब पे। आपके सामने एक मेन्यू जो है वो अपीयर हो जाएगा। आपको डिलीट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, फिर आपके सामने डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा। आपको डिलीट शीट को सिलेक्ट करना है। Now saving a workbook. To save a workbook, follow the given steps. Step 1. Click on the File tab. Step 2. If you are saving the workbook for the first time or saving the workbook you are currently working on, click on Save command. If you want to save the current workbook with a new name, click Save As. The Save As pan appears in the Backstage view. Step 3. Select location and click on Browse option. Navigate to the folder where you want to save your workbook. Step 4. Type a name for your file in the file name box. Step 5. Click on Save button. अगर आप अपनी वर्कबुक को सेव करना चाहते हैं तो आपको फाइल टैब पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप अपनी वर्कबुक को फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं, ठीक है, या आप अपनी करंटली जिस पे आप काम कर रहे थे उसे आप सेव कर रहे हैं, तो आप सिंपली सेव कमांड पे क्लिक करेंगे। अगर आप अपनी वर्कबुक को नए नाम के साथ सेव करना चाहते हैं तो आप सिंपली सेव एज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सेव एज पैन जो है आपके सामने अपीयर हो जाएगा। आपको लोकेशन को सिलेक्ट करना है जहाँ पे आप अपनी जो वर्कबुक है उसे सेव करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप उस फोल्डर को नेविगेट करेंगे जहाँ पे आप अपनी वर्कबुक को सेव करना चाहते हैं। देन आप फाइल का नेम जो है वो टाइप करेंगे इन द फाइल नेम बॉक्स और उसके बाद आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे। टेक टिप: Use Ctrl+S or F12 to open the Save As dialog box. The file extension of Excel 2016 is .xlsx. अगर आपको अपनी फाइल को सेव एज में सेव करना है तो आपको सिंपली अपने कीबोर्ड पे Ctrl+S या फिर F12 को टाइप करना होगा। Opening an existing workbook. To open an existing workbook, follow the given steps. Step 1. Click on the File tab. The Backstage view appears. Step 2. Click on the Open option from the left pane. The Open dialog box appears. Step 3. Click on the Browse option. Step 4. Locate the file which is to be opened. Step 5. Click on Open button. The selected file will get opened. तो बच्चों, आपने अपनी फाइल सेव कर ली, अब उसे दोबारा से आपको ओपन करना है तो कैसे करेंगे? आपको सिंपली फाइल टैब पे क्लिक करना है, ठीक है, और आपके सामने बैकस्टेज व्यू जो है वो अपीयर हो जाएगा। उसके बाद आपको ओपन ऑप्शन पे क्या करना है, क्लिक करना है। ओपन डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा। आपसे फाइल पूछी जाएगी कि कौन सी फाइल आपको ओपन करनी है, तो आपको ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। आपको फिर फाइल को लोकेट करना है जो भी आप ओपन करना चाहते हैं। इसके बाद आप ओपन बटन पे क्लिक करेंगे, आपकी जो सेलेक्टेड फाइल है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। टेक टिप: प्रेस Ctrl+O टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल। ठीक है, आप अपने कीबोर्ड पे Ctrl+O भी प्रेस करके अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। Closing a workbook. You can close a workbook without closing the Excel window. To close the workbook, follow the given steps. Step 1. Click on the File tab. Step 2. Click on the Close option. This will close the current workbook but not the Excel window. अब आपको अपनी वर्कबुक को क्लोज करना है तो आप सिंपली फाइल टैब पे जाएंगे, उसके बाद आप क्लोज ऑप्शन पे जाएंगे तो आपकी जो करंट वर्कबुक है वो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, लेकिन आपकी जो एक्सेल विंडो है वो ओपन ही रहेगी। टेक टिप: प्रेस Alt+F4 टू क्लोज एक्सेल। अब आपको अगर
एक्सेल को क्लोज करना है तो आप सिंपली अपने कीबोर्ड पे Alt+F4 भी प्रेस कर सकते हैं। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको पता चल गया होगी कि एक्सेल पे आप कैसे काम कर सकते हैं। अब इस चैप्टर का रिवीजन और दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।